Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Art with Kashyap. This is Kashyap here. I am very happy and thankful कि आपने इतना सारा प्यार दिया मेरी ईद ब्लॉग पे और इतने सारे लाइक्स किए, इतने सारे कमेंट्स किए और मुझे बहुत अच्छा लगा. दिस मैटर्स अ लॉट. मैंने कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स में एक्चुअली देखा था कि व्लॉग्स बनाओ बहुत सारे इसमें कि व्लॉग्स बनाओ. सो या हियर आई एम विथ अ न्यू ब्लॉग. अगर आपने मेरे ईद ब्लॉग नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वो चेक कर लेना. जैसे आपने मेरे ईद ब्लॉग पे इतना सारा प्यार दिया है वैसे आप मेरे हर वीडियोस पे, हर ब्लॉग्स पे, हर ड्राइंग्स पे भी उतना ज़्यादा प्यार देना और आप वैसे ही कमेंट्स करते रहना क्योंकि मैं हर कमेंट्स को देख के मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ. और अगर मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब नाउ. Hello friends, welcome back to my YouTube channel Art with Kashyap. So now let's begin with today's video. I'm going to make this really cute and amazing handmade paper made from recycled papers. Yeah. Ta-da! These are so good and amazing. So let's get started. So yeah, for making these handmade papers, you'll need a sieve or chalni, a बेलन जो इंडियन किचन में आराम से मिल जाएगा, a small bowl for soaking the recycled papers, a big bowl so that उसमें sieve अंदर घुस जाए and we'll have to use it, and some extra cloths that is not in use क्योंकि उसमें फिर stain लग सकता है, and some food color या मतलब food color और postal colors और water colors जो भी आपके पास available हो. Acrylic paints मत use करना because they are not good for the environment. एंड या द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसाइकलिंग पेपर्स जो आपको अभी यूज़ नहीं करना हो, जो आप रिसाइकल करना चाहते हो, एक न्यूज़पेपर्स भी यूज़ कर सकते हो, ओल्ड पेपर्स और ब्लैंक पेपर जो भी आपको रिसाइकल करना हो. सो या मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस वीडियो मैं आपको देने वाली हूँ 10 इम्पॉर्टेंट टिप्स जिससे आप वही गलती ना दोहराए और आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे आपको करना पड़ेगा. सो या स्टे टिल द एंड. So the first step is to take your recycling paper and tear it in smaller pieces and put it in a bowl and soak it for a night, or you can also soak it for 2 to 3 hours. After cutting the paper into smaller pieces, use 2 to 3 cups of water. If you want to, you can mix the paper and then leave it for a night. After leaving the papers for overnight, they have absorbed the water completely and are ready for grinding. For grinding, take out the papers and put 2 cups of water and grind it well. While grinding, grind it well and make a smooth paste out of it, and the pulp is ready. Now take the pulp out in different bowls. Now I am making some different colors for the paper. I am using yellow, pink and blue food colors. For coloring, you can also use food colors, poster colors or watercolors, but don't use acrylic paints as they are harmful for the environment. So yeah, the first tip I'm gonna give you is be patient. Yeah, you heard it right, be patient because this is a time consuming process. इसमें बहुत टाइम लगेगा और आपको ये आराम से करना पड़ेगा, ये जल्दी में नहीं हो सकता. इफ़ यू लाइक आप हड़बड़ी में कर दोगे तो कहीं से पेपर टूट जाएगा या पेपर अच्छे से रिसाइकल नहीं हो पाएगा. तो इसलिए इसको टाइम देना पड़ेगा, आराम से करना पड़ेगा कि आपका पेपर बहुत अच्छे से बने और अच्छा आउटपुट मिले. सो या लेट्स स्टार्ट. Take a large bowl, fill it with water and ध्यान रखना कि छलनी से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऊपर तक पानी रहे. Take the pulp and mix it in the water. Now take the sieve or the छलनी and put it inside the water.
Leave it inside the water for 5 to 10 minutes, and while taking it out, drain the water completely. Now, after draining the water, keep it on the plate with holes so that can drain more water. Take an extra cloth and soak out all the water. After the cloth has soaked the water from the paper, remove it gently and slowly so that the paper will not be torn. If your sieve is of metal, do it upside down and tap it slowly so that the paper will carve out. As you can see, मेरी छलनी प्लास्टिक की है तो उसका अंदर का छलनी निकल गया और मैंने उसको अलग से कपड़े से एक बार उसका वाटर सोक कर लिया वापस से, एंड मैं उसे हल्के से जेंटली टैप करके वो पेपर निकाल लूँगी. और देखिए मेरा पेपर कितने अच्छे से निकल गया है. सिर्फ साइड का थोड़ा ख़राब हो गया है, वो हम उसको सूखने के बाद उसका कट करके एक रीशेप कर सकते पेपर को. अब पेपर के ऊपर क्लॉथ डाल के 2 बार बेलन घुमा लेना, तो उससे दोनों साइड से पेपर सॉफ्ट हो जाएगा और उस पर कोई फिंगरप्रिंट या कुछ नहीं आएगा. आफ्टर डूइंग इट, टेक आउट द पेपर एंड मूव इट टू अनदर क्लॉथ. So the tip number 2 is take good amount of pulp. If you take 1 spoon pulp, it will be very less and the paper will be transparent. And if you take more than 5, then it will be very thick. So take an amount of 3 to 4 spoon per paper. एंड अब मैं सेकंड पेपर बनाने के लिए भी सेम प्रोसीजर यूज़ कर रही हूँ. मैंने अपना पल्प डाल दिया, मैं मिक्स कर रही हूँ. अब मैं उसमें छलनी डाल के 5 to 10 मिनट्स वेट करने के बाद उसे निकाल के सेम वैसे ही पेपर निकालूँगी. सो द टिप नंबर 3 इज़ ड्रेन वाटर कम्प्लीटली, क्योंकि अगर आपने ड्रेन नहीं किया वाटर पूरा तो उसमें वाटर कंटेंट रह जाएगा और निकालते वक्त आपका पेपर साइड से फट सकता है. सो द टिप नंबर 4 इज़ सोक मैक्सिमम वाटर आउट. हल्के से टैप करके सारा पानी निकाल सकते हो आप एक्स्ट्रा क्लॉथ यूज़ करके. तो फिर अगर उसका वाटर कंटेंट कम होगा तो आपका पेपर का आउटपुट ज़्यादा अच्छा आएगा. सो द टिप नंबर 5 इज़ रिमूव द क्लॉथ स्लोली, क्योंकि आप देख सकते हो और आराम से निकालेंगे तो कुछ होगा नहीं, वरना अगर आप जल्दी कर दोगे तो साइड का थोड़ा सा फट सकता है. सो माई टिप नंबर 6 इज़ बी जेंटल. अगर आप हल्के से करोगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं दोगे तो उससे पेपर का शेप नहीं चेंज होगा. सो माई टिप नंबर 7 इज़ डू नॉट यूज़ एक्स्ट्रा प्रेशर. जितना बेलन का प्रेशर है आप उसी से रोल आउट करो, वरना अगर आप ज़्यादा प्रेशर करोगे तो एक साइड से पेपर बाहर आ सकता है या शेप ख़राब हो सकता है. सो माई टिप नंबर 8 इज़ ऑलवेज चेंज योर वाटर एंड क्लीन योर सिव. अगर आप चेंज नहीं करोगे तो कलर मिक्स हो सकता है और आउटपुट अच्छा नहीं आएगा. और अगर आप सीव को साफ़ नहीं करोगे बार बार तो उसमें थोड़े थोड़े पेपर पार्टिकल्स अटक जाते हैं, तो उससे एक जगह पे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, एक जगह पे कम. सो माई टिप नंबर 9 इज़ टैप स्लोली एंड रिमूव द पेपर. आप उस पर ज़्यादा प्रेशर मत देना और उसे हल्के से उठाना, तो आपका पेपर बहुत अच्छे से निकल सकता है. अब मैंने मेरा लास्ट पेपर भी निकाल लिया और अब मैं इसको इधर से उठा के एक अलग पेपर पे रख दूँगी फॉर ड्राइंग.
After drying the paper for the day, it is completely dried and now it's so good and the output is so amazing. सो नाउ अब मेरे को ये पेपर रीशेप करना पड़ेगा क्योंकि साइड में थोड़ा ये हो गया है, ख़राब हो गया है, तो उसको मैं सिज़र्स लेके उसको अच्छे से सर्कल में ही रीशेप कर दूँगी. वैसे ही मैं अपने और भी पेपर्स रीशेप कर दूँगी. So after reshaping, the papers look like these. So the last step, the 10th step I'm gonna tell you is try till you succeed. हाँ, क्योंकि एक आधे बार पेपर टूट सकता है या ख़राब हो सकता है. मेरा नहीं हुआ, लेकिन या हो सकता है क्योंकि कभी कभी पल्प की क्वांटिटी कम ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा वो हो जाता है. तो फिर अगर आपका ऐसा हो तो आप हार मत मानना, आगे भी ट्राई करते रहना और आपका ज़रूर अच्छा बन जाएगा पेपर. सो या दिस वाज ऑल द टिप्स एंड द प्रोसेस फॉर मेकिंग द हैंडमेड पेपर. एंड या आपको मैं एक बोलना चाहूँगी कि आप ना कलर ज़्यादा डालना पेपर के लिए जब मिक्स करेंगे, क्योंकि मैंने जो पेपर बनाया उसमें इतना डिफरेंस नहीं दिख रहा पेपर में कलर का, क्योंकि मेरे से थोड़ा कम कलर गया था. देखो कैमरा में इतने अच्छे से नहीं दिख रहा, लेकिन ये थोड़ा वॉयलेटिश है और ये फुल वाइट है. थोड़ा तो ऐसा फ़र्क है, लाइक इतना अच्छे से नहीं दिख रहा. तो या फूड कलर या जो भी आप वाटर कलर पोस्टर कलर डालेंगे उसमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी डालना. मैं पेपर बनाने का प्रोसेस अच्छा लगा हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी कि इससे आप क्या बना सकते हो, क्या डेकोरेटिव आइटम बना सकते हो, क्या इस पर पेंट कर सकते हैं या ऐसी और चीज़ें. Hope you like this video. I post my videos on every Monday, Wednesday and Friday. So see you soon. Bye. Allah Hafiz. Thanks for watching my video. Like, share and subscribe, and if you are new to my channel, press the bell icon so that you get my latest videos. Bye bye.